Welcome back, students. I hope you all are doing fine and staying safe at your homes. And with the hope of meeting soon, to we continue to today's lecture, and we have been doing the chapter The Tiger King. In the last video lecture, we had stopped on page number 12 in your book Vistas, and today we will start from the part 4 of the chapter, which is on the same page, last paragraph. So till now we have seen in the story how the Tiger King is trying to do away with the prophecy that he will be killed by a tiger. वो इस बात को गलत साबित करना चाह रहे हैं और अपने आप को टाइगर्स से बचाना चाह रहे हैं. So he is trying to basically kill 100 tigers. Okay, and this is something very foolish as we had talked previously, and still we have to see what happens. Okay, so the Tiger King is trying to please the high ranking officer and his wife, and we saw how he had sent the gifts in the form of diamond rings to his wife to make him happy in return of not allowing him to kill the tiger or allow him any picture of a dead tiger. So वो इस बात को एक अच्छा मोड़ देने के लिए क्या करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं. बट उसमें और क्या होता है इनके साथ कि इनको और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. ही सफर्स अ लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज बिकॉज व्हाट द वाइफ of that British officer does, she doesn't return the diamond rings by choosing one or two. Instead, she keeps all the 50 expensive diamond rings. So this is what happened in the last lecture, and we had stopped there, and today we will continue from page number 12. Okay, so the Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forests of Pratibandhipuram. सो टाइगर महाराज की जो टाइगर हंट जो है वो बहुत अच्छी चल रही होती है, एंड ही इज बेसिकली एबल टू किल द टाइगर्स वन बाय वन. और 10 सालों में वो 70 टाइगर्स मार लेते हैं. इन 10 years ही कंप्लीट्स दिस 70 टाइगर किलिंग. ओके, सो नाउ कितने बचे? बस 30 टाइगर्स और मार लेंगे वो, तो इनकी ये जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी. दैट ही इज नाउ सेफ फ्रॉम टाइगर्स. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ जो उनके इस मिशन को बीच में ही एक हर्डल की तरह आकर जिसने इसको रोक दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. तो क्या होता है कि उनके जो स्टेट है जिसके वो रूलर हैं उसमें टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाती है. एक्सटिंक्ट इज कंप्लीटली लॉस्ट, बिल्कुल ख़त्म. ओके, सो जब वहाँ पे बिल्कुल एक भी टाइगर अब नहीं बचा मारने के लिए, सो ये बहुत परेशान हो जाते हैं. एंड व्हाट ही थिंक्स, हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. So what is the author telling us in a very humorous manner that वहाँ पे एक भी टाइगर नहीं बचा. क्यों नहीं बचा? Were the tigers practicing birth control or did they commit harakiri? Now what is harakiri? Harakiri was a ceremonial suicide in Japan. जो पहले के ज़माने में जापान में जो सोल्जर्स होते थे वो ये इस काइंड ऑफ सुसाइड को करते थे. इट वाज अ सुसाइड जब उनको कोई सज़ा मिलती थी या उनको बहुत डिस्ग्रेस होते थे वो कहीं, मतलब उनको बहुत बुरी सिचुएशन आती थी जिसमें उनके ऑनर पे बहुत खतरा मंडराता था या उनको बहुत डिसऑनर किया जाता था. सो in such kind of circumstances, what they used to do, those Japanese soldiers, those samurais, Japanese soldiers जिनको हम samurai बोलते हैं, वो क्या करते थे? वो हराकिरी करते थे. This was a ritual suicide, a kind of ceremonial suicide जिसमें वो अपने आप को एक डैगर या एक नाइफ से मार लेते थे. Okay, it was a kind of disembowelment in which the abdomen was pierced with a dagger or a knife.
जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में पहले जो होती थी सती प्रथा होती थी, जिसमें जो सोल्जर्स की वाइफ होती थी वो अपने आप को वो आग में कूद कर वो अपनी भी जान दे देती थी. इन दैट बर्निंग फायर दे यूज टू जम्प एंड दे यूज टू डाई विद देयर हस्बैंड्स. दे वुड गेट बर्न विद देयर हस्बैंड्स. ओके, सो दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो ये बहुत ही काइंड ऑफ नेगेटिव सी चीज़ थी, बहुत ही एक सोशल इविल था जिसको इंडिया के सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने इस चीज़ को दूर किया था. सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एनीवे. सो उसी तरह एक पुरानी ये प्रथा थी जापान में जो सोल्जर्स करते थे, एंड इट वाज अ सुसाइड. एंड अब वो नहीं होती है, पहले ये ऐसी होती थी. सो यहाँ पे एक मजाक के तौर पे द राइटर इज टेलिंग कि टाइगर्स की पॉपुलेशन जब कम हो गई, सो व्हाट वाज द रीजन? वर दे प्रैक्टिसिंग बर्थ कंट्रोल और डिड दे कमिट सुसाइड लाइक द जापानीज सोल्जर्स और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट? या फिर वो इस प्रतिबंधपुरम से ही भाग गए? Why? Because they wanted to be killed only by British officers. So it is a kind of joke that the writer is cracking upon the characters in the story and basically upon the Tiger King. One day the Maharaj sent for the Diwan. Diwan Sahab, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. So एक दिन क्या होता है, महाराज जो होते हैं वो अपने दीवान को बुलाते हैं और वो बिल्कुल अपनी जो गन है उसको बिल्कुल चमका करके क्या बोलते हैं, दैट आप देख नहीं रहे कि मेरी गन से अभी 30 टाइगर मारे जाने बाकी हैं. ओके, सो माई गन इज़ वेरी मच ईगर टू किल ऑल 100 टाइगर्स और अभी 30 टाइगर्स बचे हुए हैं. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. सो वो जो दीवान होते हैं वो गन को देख करके डर जाते हैं और वो क्या बोलते हैं कि जहाँ पना, मैं एक टाइगर थोड़ी हूँ. सो ही थिंक्स कि ये जो महाराज हैं ये अब इन्हीं को मार डालेंगे. वो अपनी गन ऐसे दिखाते हैं कि ही फील्स अ काइंड ऑफ शडरिंग फियर और वो कांपने लगते हैं डर के मारे. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? सो महाराज सेज कि कौन बोलेगा कि तुम टाइगर हो. सो व्हाट ही सेज, नो आई एम नॉट अ गन. You are neither tiger nor gun, Diwan Sahab. I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. So, जो दीवान साहब हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं महाराज के प्रेजेंस में और बेसिकली गन के प्रेजेंस में. सो वो क्या बोलते हैं कि मैं एक टाइगर नहीं हूँ. एंड देन ही सेज कि नो यू आर नॉट अ टाइगर. सो ही सेज नहीं, मैं एक गन भी नहीं हूँ. ओके, सो वो कम्प्लीटली अपने माइंड को लूज कर चुके हैं इनके सामने. ही इज सो मच अफियर्ड ऑफ द टाइगर किंग. ओके, सो द टाइगर किंग सेज दैट मैंने आपको यहाँ पे एक अलग काम के लिए बुलाया. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. ओके, द दीवान began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. तो दीवान जो है वो और बैबल कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिना सोचे समझे नॉनसेंस बोल रहे हैं. एंड व्हाट ही सेज दैट व्हेन ही लिसन्स दैट टाइगर किंग शादी की बात करने आए, सो ही सेज कि मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, हाउ कैन आई मैरी यू? सो द टाइगर किंग सेज दैट why will I marry you? Okay, why will I marry my diwan? Okay, so he says what I want is a tiger. The tiger king says that what he wants is a tiger. Now the diwan, he is saying, Your Majesty, please think it over. Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for the state. It doesn't need a tiger queen as well. So basically the Diwan is so much afeared that he says that Your Majesty, the earlier ancestors, जो आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं, आपके जो दादा परदादा थे, उन लोगों में ऐसा रिवाज चलता था that they used to marry the sword. वो अपनी तलवार से शादी कर लेते थे, वो अपने गन्स से शादी कर लेते थे. They were such great warriors that they used to do all these things.
एंड देन ही सेज अ टाइगर किंग इज मोर दैन इनफ फॉर दिस स्टेट. लेकिन हमारी जो स्टेट है उसमें एक टाइगर किंग ऑलरेडी प्रेजेंट है. नाउ वी डोंट नीड अ टाइगर क्वीन. So basically the Diwan is thinking that the tiger king wants to marry a tigress. Okay, the Maharaj gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. So when the Maharaja listens to this, what the Diwan is thinking, all sorts of possibilities he is thinking in his mind. So Maharaj laughs very loudly and then he says that I am not thinking of marrying either a tiger or a gun. In fact, I am looking for a girl to marry and I cannot marry anyone. Obviously एक महाराज जो है वो एक रानी से ही शादी करेंगे. So he says that the Diwan has this responsibility that he will first look for the tiger populations in different states. तो वो अलग अलग जो स्टेट है उनके आसपास के वहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में है और उसके बाद जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन होगी वो वहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कौन सी फैमिली है, ऐसी कौन सी रॉयल फैमिली है जहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जिससे वो शादी कर सकते हैं. सो दिस इज हिज प्लान. और ये प्लान जो है बेसिकली टू गेट मैरिड, ये शादी के लिए नहीं है. दिस इज नॉट फॉर द सेक ऑफ अ गुड मैरिज, ऑफ अ फ्यूचर, ऑफ अ फैमिली. दिस इज सिंपली फॉर द सेक ऑफ द प्रोफेसी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने की थी. उनको शादी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टाइगर से लेना देना है. ही वॉन्ट्स टू किल tigers. Okay, the Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. तो दीवान ने ये काम पूरा कर दिया बहुत आसानी से और उन्होंने एक ऐसा स्टेट खोजा जहाँ पे टाइगर्स ही बहुत थे एंड देयर वाज आल्सो अ सूटेबल गर्ल. ओके, महाराज जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. So इनकी बहुत जल्दी शादी भी हो गई बिकॉज उनको मेन क्या करना था, उनको और 30 टाइगर मारने थे. So he got married and then every time he visited his father-in-law's place, what he would do, he would kill 5 or 6 tigers. वो वहाँ जाते थे और 5-6 टाइगर हर बार हंट करके वापस आते थे. In this manner 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. So इस तरह से क्या हुआ कि टाइगर किंग ने 99 टाइगर्स को मार डाला. He was able to kill 99 tigers और टोटल जो 100 की प्रोफेसी थी उसको फुलफिल होने में अब बस एक टाइगर बच गया था और 99 सक्सेसफुली उन्होंने मार लिए थे. सो उन जितने भी वो टाइगर्स को मारते थे वो उन सब को ला करके उनकी स्किन्स को अपने पैलेस के दीवारों पे सजाते थे एज अ फॉर्म ऑफ एन अचीवमेंट, एज अ फॉर्म ऑफ एन अकॉम्प्लिशमेंट एंड ब्रेवरी. पहले के ज़माने के लोग ऐसे ही करते थे. वो जानवरों को जब मारते थे तो उनके हॉर्न्स को या उनके दांतों को ला करके या उनके स्किन को ला करके अपने घरों में सजाते थे. सो दिस इज़ व्हाट द महाराज डिड एंड ही वाज सक्सेसफुल इन किलिंग 99 टाइगर्स. अब एक टाइगर बच गया है एंड आगे की स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर होपफुली. अंटिल देन स्टे सेफ. थैंक यू एंड सी यू.